हे गाइस, आज फिर से हम बताएंगे आपको कि जो है ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ क्या है और ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, अर्थ पे लाइफ कैसे है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो है ये डाइवर्सिटी कैसे आई हमारे अर्थ पे और किस तरीके से इतने सारे एनिमल्स हैं और इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे। तो इसमें ये है कि अभी तक इसका कोई कॉन्क्रीट आइडिया और कॉन्क्रीट थ्योरी नहीं आया है। एजम्पशंस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो तथ्य आया है, जो भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो रिजल्ट आया है, उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो है पृथ्वी पर अर्थ पे लाइफ कैसे आया है। So, Katak, there is as yet no answer to the question of how life originated on the earth. ये अभी तक एक open-ended questions है. Although recent photographs taken by the Hubble telescope have revived controversy about the age of the universe, it seems clear that the Earth itself was formed 4.6 billion years ago. The oldest clear evidence of life, microfossils in ancient rock, 3.5 billion years ago. So, the origin of life seemed to have been taken just the right combination of physical events and chemical process. हम अगला स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से जो है एक एक्सपेरिमेंट हुआ और किस तरीके से जो है ये इवेंट्स, जैसे इस फिगर से हम देख सकते हैं कि जो है कैसे द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द केमिकल इवेंट और फिजिकल इवेंट किस तरीके से हम एक लिविंग सेल्स को यहाँ फर्स्ट लिविंग सेल्स ऑन अर्थ हाउ दे क्रिएटेड. So we'll clear in the next slide. Here we already discussed in the before slide and before lecture. You can watch on my YouTube. So the earth was the very hot and very molten state. In the stage was there, and hot mass and 4.6 billion years ago ऐसा कुछ था. अर्थ जब कूल हुआ तो वाटर वेपर प्रेजेंट ऑन द एटमॉस्फेयर condense in the and accumulate on the surface in the chemically. One scenario for the origin of life is that origin in this dilute hot smelly soup of ammonia formaldehyde. इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है प्रूव किया गया कि जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और साइनाइड जो है जब अर्थ ठंडे हो गए, जब इसमें वाटर जो है एक्यूमुलेट होने लगे, तो उस तरीके उस टाइप पे ये जो है ये कंपाउंड बनना शुरू हुआ. Whether at the ocean edge or hydrothermal deep sea vents or elsewhere, the consensus about atmosphere is that life arose spontaneously from the early 4.4 billion years ago. ऐसा spontaneously शब्द यूज किया जाता है यहाँ पे. ये हम देख सकते हैं कि spontaneously जो है this is the use for the origin of the life. Next is that how we can tell that the all these things is the living things. Living things or organisms have different characteristics compared to the others, like the non-living things. What is this? That means that is the order. They have sensitivity, they have the growth, they are regulated, and they have homeostasis, and they are hereditary. These are the 6 types of the characteristics of the living organisms. We cannot tell that everything is a living. No. Living organisms have certain characteristics like the order. The all organisms consist of one or more cells with highly ordered structure. Atom make up molecules which constitute a cellular organelle. We already discussed in the previous slides, previous lecture, which are contained within cells. The hierarchical segregation continue at a high level of multicellular organisms and among organisms. So that order is there in the any organisms. Sensitivity means that all organisms responded to the stimuli. Plant grow towards the source of light and your pupils blinking when you walk in the dark rooms. Growth, development and reproductions. All organisms are capable of growing and reproducing their own progeny.
This is the characteristic of organisms. Regulations. All organisms have the regulatory mechanism, and then homeostasis means the all organisms maintain the relatively constant internal condition different from the environment, a process called the homeostasis. And hereditary is that this very important thing is that the DNA molecules are containing the hereditary characteristic and containing the gene transporting from the parents to the offspring. This is the characteristic of the living organisms. So there are the many idea about the origin of life. Why here I am discuss here this slide, because how we can differentiate the living organism from the others non-living things. This is the main characteristic. The sixth characteristic is the main characteristic. So there are several view and several thought was there, like the special creation, that what the believer was thinking that स्पेशल क्रिएशन थोड़ा इन्होंने ये माना का कि गॉड के द्वारा हमारा जो है ये ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। कुछ ने माना कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आकाशीय पिंड में तारे हैं और भी अदर प्लेनेट हैं, वहाँ से हमारे यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, यानी कि ऑरिजिन लाइफ यहाँ पे हुआ है। और कुछ मानते हैं कि स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं स्लाइड में कि स्पॉन्टेनियस है। सो हम यहाँ पे अपने आप को एक लिमिट रखेंगे, हम किसी भी रिलीजन बेस्ड थॉट पे नहीं जाएंगे, हम साइंटिफिकली इस चीज को देखेंगे कि वी आर लिमिटिंग टू स्कोप आवर टू द साइंटिफिक मैटर इन आवर सर्च फॉर द अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट look to the early times. There is a fossils of simple living things, bacteria, in rock 3.5 billion years old. जो हमारा सबसे पहले बैक्टीरिया मिला वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो का मिला है, और इससे पता चलता है कि जो है हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी एनिमल्स और प्लांट है, वो एक सिंपल बैक्टीरिया के द्वारा जो है आर्ची बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ तक आया है। एज वी अटेम्प्ट टू डिटरमाइन हाउ दिस प्रोसेस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर ऑरिजिनेटेड। सो कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ओरिएंटेड हुआ ऑन द अर्थ। हम ये फिगर याद करें और इस फिगर से हम पता लगा लेते हैं कि ये फिगर जो है ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1953 में स्टेनली मिलर और सी यूरोज के द्वारा। ये इन्होंने एक जो है एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया, उन्होंने आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया और उन्होंने क्या किया लिया कि जो है हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन उस समय नहीं था, ये मान के चलेगा ऑक्सीजन उस समय नहीं था और ऑक्सीजन उन्होंने हटा दिया। लिक्विड वाटर लिया और मेंटेन द मिक्सचर विद 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टिमुलेट। दे फाउंड दैट कि एक वीक के बाद जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि 15% जो कार्बन जो ओरिजिनली प्रेजेंट इन द वो था मीथेन के साथ मिलकर उन्होंने क्या बना लिया, एक सिंपल कंपाउंड बना लिया। अमॉन्ग दिस कंपाउंड वाटर, फॉर्मल्डिहाइड एंड देन हाइड्रोजन साइनाइड ये बना लिया। और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली फिगर में कि देखिए यहाँ पे वाटर लिया इन्होंने, नाइट्रोजन लिया, अमोनिया लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, मीथेन लिया और हाइड्रोजन गैस लिया। और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या किया, ये देखिए कि जो है 1 वीक के बाद जो है क्या क्या जो है मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं और इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे बना है। तो इस तरीके से तो हम देख सकते हैं कि जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जो है लैक्टिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, तो ये जो मेन मॉलिक्यूल्स इन 1 2 3 4 5 6 7 जो कंपाउंड लिए गए उससे किस तरीके से जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है जो कि ऑलरेडी अब हमारे सेल में मौजूद रहते हैं और वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनना प्रारंभ हुआ 1 वीक के बाद। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो है हमारा लाइफ जो है स्पॉन्टेनियसली जो है ओरिजिन हुआ और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के रूप में जो है आज हमारे बीच है और हम लोग उसके उसमें हम लोग मौजूद हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि जो है ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स किस तरीके से जो है आगे बढ़ते गया और एक तरह से जो है एक सिस्टमेटिक वे से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ।
फिर उसके बाद इसी चैप्टर में हम देखेंगे इसी वीडियो में कि जो है कि डाइवर्सिटी कैसे आ गया साइनोबैक्टीरिया से। जो हम एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे वो ट्री टाइप स्ट्रक्चर कि साइनोबैक्टीरिया से कैसे एनिमलिया प्लांटिया वगैरह, तो वो डाइवर्सिटी कैसे आया, हाउ दे आर ऑर्गेनिटिंग from the single cell in the multicellular organisms, and this process will call the evolution। जब evolution हम पढ़ेंगे और evolution के दौरान जानेंगे कि जो साइनोबैक्टीरिया से जो है एकदम लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बना, डाइवर्सिटीफाई हो गया, जिसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। अभी हम अपने ऑर्गेनिज्म लाइफ में वो किस तरीके से फॉर्म मतलब चैप्टर में इसको हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब भाई शेयर करते जाओ, पढ़ाते जाओ, सबको दिखाते जाओ और सब्सक्राइब भी करते जाओ।